Passage number 79. Power, Shakti. Phase 2. Translation into Hindi. It's very odd how each one craves power. The power of money, position, capacity, knowledge. यह बहुत अजीब है कि प्रत्येक व्यक्ति कैसे शक्ति, धन, पद, क्षमता, ज्ञान की शक्ति चाहता है. In gaining power, there is conflict, confusion and sorrow. सत्ता पाने में संघर्ष, भ्रम और दुख है. The hermit and the politician, the housewife and the scientist are seeking it. सन्यासी और राजनीतिज्ञ, गृहिणी और वैज्ञानिक इसकी खोज कर रहे हैं. They will kill and destroy each other to get it. वे इसे पाने के लिए एक दूसरे को मार डालेंगे और नाश कर देंगे. The ascetic, through self-denial, control, suppression, gain the power. सन्यासी आत्मत्याग, नियंत्रण, दमन के माध्यम से उस शक्ति को प्राप्त करते हैं. The politician, by his word, capacity, cleverness, derives that power. राजनेता अपने शब्द, क्षमता, चतुराई से उस शक्ति को प्राप्त करता है. The domination of the wife over the husband and he over her. Feel this power. पति पर पत्नी का प्रभुत्व और उनके ऊपर उसका पति का इस शक्ति को महसूस करते हैं. The priest who has assumed, who has taken upon himself the responsibility of his God knows this power. पुजारी जिसने मान लिया है, जिसने अपने ऊपर अपने ईश्वर की जिम्मेदारी ले ली है, वो इस शक्ति को जानता है. Everyone seeks this power or wants to be associated with divine or worldly power. हर कोई इस शक्ति की तलाश करता है या दैवीय या सांसारिक शक्ति से जुड़ना चाहता है. Power breeds authority and with it comes conflict, confusion and sorrow. शक्ति अधिकार को जन्म देती है और इसके साथ संघर्ष, भ्रम और दुख आता है. Authority corrupts him that has it and those that are near it or seeking it. अधिकार उसे भ्रष्ट करता है जिसके हाथ में यह है और जो इसके पास है या इसकी तलाश कर रहे हैं. The power of the priest and the housewife, of the leader and the efficient organizer, of the saint and the local politician is evil. The more power, the greater the evil. पुजारी और गृहिणी, नेता और कुशल संगठनकर्ता, संत और स्थानीय राजनेता की शक्ति अनिष्टकारी है, evil है. जितनी अधिक शक्ति उतनी ही अधिक अनिष्टकारी है. It is a disease that every man catches and cherishes and worships. यह एक ऐसी बीमारी है जिसे हर आदमी पकड़ लेता है और समझता है और पूजा करता है. But with it comes always endless conflict, confusion and sorrow. लेकिन इसके साथ हमेशा अंतहीन संघर्ष, भ्रम और दुख आता है. But no one will deny it, put it aside. लेकिन कोई इससे इनकार नहीं करेगा, न इसे एक तरफ रख देगा. With it goes ambition and success and a ruthlessness that has been made respectable and so acceptable. इसके साथ महत्वाकांक्षा और सफलता और निर्ममता जाते हैं जिसे सम्मानजनक और इतना स्वीकार्य बना दिया गया है. Every society, temple and church gives it its blessing and so love is perverted and destroyed. हर समाज, मंदिर और चर्च उसे अपना आशीर्वाद देते हैं और इसलिए प्रेम विकृत और नष्ट हो जाता है. And envy is worshipped and competition is moral. और ईर्ष्या की पूजा की जाती है और प्रतिस्पर्धा
नैतिक है। बट विथ इट ऑल comes fear, war and sorrow. But yet no man will put this aside. परंतु इसके साथ भय, युद्ध और शोक सब कुछ आता है, परंतु फिर भी कोई मनुष्य इन्हें अलग नहीं रखेगा। To deny power in every form is the beginning of virtue. Virtue is clarity. It wipes away conflict and sorrow. सत्ता को हर रूप में नकारना सद्गुण की शुरुआत है। सद्गुण स्पष्टता है। यह संघर्ष और दुख को मिटा देता है। This corrupting energy with its endless cunning activities always brings its inevitable mischief and मिजरी। यह भ्रष्ट ऊर्जा अपनी अंतहीन धूर्त गतिविधियों के साथ हमेशा अपनी अपरिहार्य शरारत और दुख लाती है। देयर इज नो एंड टू इट। इसका कोई अंत नहीं है। हाउएवर मच इट इज रिफॉर्म्ड and fenced in by law or by moral convention, it will find its way out darkly and unbeaten. कानून या नैतिक परिपाटी द्वारा इसमें कितना भी सुधार और बाड़ लगाई जाए, यह अंधेरे और बेबुलाया अपना रास्ता खोज लेगा। For it is there, hidden in the secret corners of one's thoughts and desires. क्योंकि यह वहाँ है, किसी के विचारों और इच्छाओं के गुप्त कोनों में छिपा हुआ है। It is these that must be examined and understood if there is to be no conflict, confusion and sorrow. यदि कोई संघर्ष, भ्रम और दुख नहीं होता है, नहीं चाहता है, तो इन्हीं की जांच और समझ की जानी चाहिए। Each one has to do this, not through another, not through any system of reward or punishment. प्रत्येक को यह करना है, किसी दूसरे के द्वारा नहीं, किसी पुरस्कार या दंड की व्यवस्था के द्वारा नहीं। Each one has to be aware of the fabric of his own makeup. प्रत्येक व्यक्ति को अपने मेकअप बनावट के ताने वाने अर्थात फैब्रिक के प्रति जागरूक रहना हो। टू सी वॉट इज द एंडिंग ऑफ दैट विच इज। जो है उसे देखना, जो है उसका अंत होना है। विद अ कंप्लीट एंडिंग ऑफ दिस पावर, विद इट्स कंफ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट एंड सॉरो, ईच वन फेसेस व्हाट ही इज, अ बंडल ऑफ मेमोरीज एंड डीपनिंग लोनलीनेस। इसके भ्रम, संघर्ष और दुख के साथ, इस शक्ति के पूर्ण अंत के साथ हर एक उसका सामना करता है जो वो है। यादों का एक बंडल या गठरी और गहराता हुआ अकेलापन अर्थात लोनलीनेस। द डिजायर फॉर पावर एंड सक्सेस आर एन एस्केप फ्रॉम दिस लोनलीनेस एंड द एसिड विच आर मेमोरीज। शक्ति और सफलता की इच्छा इस अकेलेपन अर्थात लोनलीनेस और उस राख से मुक्ति है जो यादें हैं, मेमोरीज है। टू गो बियॉन्ड वन हैज़ टू सी देम, फेस देम, नॉट अवॉइड देम इन एनी वे बाय कंडेमिंग और थ्रू फियर ऑफ व्हाट इज। परे जाने के लिए उन्हें देखना होगा, उनका सामना करना होगा, किसी भी तरह से उनकी निंदा करके या जो है उसके भय से बचते हुए नहीं है। Fear arises only in the very act of running away from the fact, the what is. भय केवल तथ्य से भागने की क्रिया में उत्पन्न होता है, जो है उससे भागने की क्रिया में। One must completely and utterly, voluntarily and easily put aside power and success, and then in facing, seeing, being,
passively aware, without choice, the ashes and loneliness have a wholly different significance. पूरी तरह से और पूर्ण रूप से, स्वेच्छा से और सहज रूप से शक्ति और सफलता को एक तरफ रख देना चाहिए और फिर सामना करने, देखने, निष्क्रिय रूप से जागरूक होने में बिना किसी विकल्प के राख और अकेलेपन का पूरी तरह से अलग महत्व है. टू लिव विथ समथिंग इज टू लव इट, नॉट टू बी अटैच्ड. किसी चीज के साथ जीना उसे प्यार करना है, आसक्त होना नहीं. टू लिव विथ द एशेज ऑफ लोनलीनेस there must be great energy, and this energy comes when there is no longer fear. अकेलेपन की राख के साथ जीने के लिए बड़ी ऊर्जा होनी चाहिए और यह ऊर्जा तब आती है जब भय नहीं रहता. When you have gone through this loneliness as you would go through a physical door, then you will realize that you and the loneliness are one. You are not the observer watching that feeling which is beyond the world. जब आप इस अकेलेपन अर्थात लोनलीनेस से गुजरे होंगे, जैसे आप एक भौतिक दरवाजे से गुजरते हैं, तब आपको एहसास होगा कि आप और अकेलापन और अथवा लोनलीनेस एक है. आप उस अनुभव को देखने वाले दृष्टा देखने वाले नहीं है, ऑब्जर्वर नहीं है, जो शब्द से परे है. यू आर दैट, तुम वो हो, and you cannot get away from it as you did before in many subtle. और आप इससे पहले की तरह कोई सूक्ष्म तरीकों से इससे दूर नहीं हो सकते. You are that loneliness. There is no way to avoid it and nothing can cover it or fill it. तुम वो अकेलापन लोनलीनेस हो, इससे बचने का कोई उपाय नहीं और इसे कोई ढक या भर नहीं सकता. Then only are you living with it. It is part of it. It is the whole of. तभी आप इसके साथ जी रहे हैं. यह तुम्हारा हिस्सा है, यह तुम्हारा पूरा हिस्सा. Neither despair nor hope can banish it, nor any cynicism, nor any intellectual cunning. ना तो निराशा और ना ही आशा इसे दूर कर सकती है, ना ही कोई सनक और ना ही कोई बौद्धिक चालाक. You are that loneliness, the ashes that had once been fire. तुम वो अकेलापन हो, वो राख जो कभी आग हुआ करती थी. This is complete loneliness, irremediable, beyond all action. यह पूर्ण अकेलापन असाध्य है, सभी क्रियाओं से परे. The brain can no longer devise ways and means of escape. It is the creator of this loneliness through its incessant activities of self-isolation, of defense and अग्रेशन. मस्तिष्क अब बचने के तरीके और साधन नहीं खोज सकता. यह आत्म अलगाव, सेल्फ आइसोलेशन, रक्षा और आक्रामकता की अपनी निरंतर गतिविधियों के माध्यम से इस अकेलेपन का निर्माता है. When it is aware of this negatively without any choice, then it is willing to be utterly still. जब यह इसके बारे में जान जाता है नकारात्मक रूप से बिना किसी पसंद, तो यह मरने को तैयार है पूरी तरह से शांत होने के लिए. Out of this loneliness, out of these ashes, a new movement is born. इस एकाकीपन अर्थात लोनलीनेस से, इस राख से एक नया गति अर्थात आंदोलन जन्म लेता है. It is the movement of the alone. यह एकांत का आंदोलन अर्थात गति है, लोनलीनेस का नहीं, अलोन का. It is that state when all influence, all compulsion, every form of search and achievement have naturally and completely stopped. यह वो स्थिति है जब सभी प्रभाव, सभी मजबूरियां, हर प्रकार की खोज और उपलब्धि स्वाभाविक रूप से और पूरी तरह से बंद हो जाती है. It is
it is death of the known. यह ज्ञात की मृत्यु है. Then only is there the never ending journey of the unknowable. तभी अज्ञेय की अर्थात unknowable की अनंत यात्रा होती है. Then is there power whose purity is creation. फिर कोई शक्ति है जिसकी पवित्रता सृजन. Phase 3 comprehension. Question number 1. How does the text describe the universal craving for power and what consequences does it associate with it, this craving? पाठ सत्ता के लिए सार्वभौमिकता सार्वभौमिक लालसा क्रेविंग लालसा का वर्णन कैसे करता है और यह इस लालसा के साथ क्या परिणाम जोड़ता है. The text describes a universal craving for power in various aspects of life. It associates this craving with conflict, confusion and sorrow, both for individuals and society. यह पाठ जीवन के विभिन्न पहलुओं में सत्ता की सार्वभौमिक लालसा का वर्णन करता है. यह इस लालसा को व्यक्तियों और समाज दोनों के लिए संघर्ष, भ्रम और दुख से जोड़ता है. What is the relationship between power and authority according to the text? पाठ के अनुसार शक्ति और अधिकार के बीच क्या संबंध है? The text asserts that power leads to authority, and with authority comes conflict, confusion, and sorrow. It further suggests that authority corrupts those who possess it and those seeking it. पाठ इस बात पर जोर देता है कि शक्ति अधिकार की ओर ले जाती है और अधिकार के साथ संघर्ष, भ्रम और दुख आता है. यह आगे सुझाव देता है कि अधिकार उन लोगों को नष्ट भ्रष्ट कर देता है जिसके पास यह है और जो इसे चाहते हैं. Why does the text claim that denying power is the beginning of virtue and how is virtue described? पाठ यह दावा क्यों करता है कि शक्ति को नकारना सद्गुण की शुरुआत और सद्गुण का वर्णन कैसे किया गया है? The text claims that denying power is the beginning of virtue because virtue leads to clarity and eliminates conflict and sorrow. Virtue is described as the wiping away of these negative aspects. पाठ का दावा है कि शक्ति को नकारना सद्गुण की अर्थात वर्च्यू की शुरुआत है क्योंकि सद्गुण स्पष्टता की ओर ले जाता है और संघर्ष और दुख को समाप्त करता है. सद्गुण को इन नकारात्मक पहलुओं को दूर करने के रूप में वर्णित किया गया है. How does the text describe loneliness and its connection to the desire for power and success? पाठ अकेलेपन अर्थात लोनलीनेस और शक्ति तथा सफलता सक्सेस की इच्छा से इसके संबंध का वर्णन कैसे करता है? The text describes loneliness as a deepening state of being that people often try to escape through the desire for power and success. It suggests that to truly face and understand loneliness, one must voluntarily put aside power and success. पाठ में अकेलेपन को एक गहरी होती स्थिति के रूप में वर्णित किया गया है जिससे लोग अक्सर शक्ति और सफलता की इच्छा से बचने की कोशिश करते हैं. यह सुझाव देता है कि वास्तव में अकेलेपन का सामना करने और समझने के लिए व्यक्ति को स्वेच्छा से शक्ति और सफलता को अलग रखना होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द न्यू मूवमेंट दैट अराइजेज आउट ऑफ लोनलीनेस एंड the ashes of the known? अकेलेपन और ज्ञात की राख से उत्पन्न होने वाले नए आंदोलन का क्या महत्व है? The new movement signifies a state of being alone, free from influences and compulsion, where all search and movement, achievement have ceased. It is described as the death of the known and the beginning of the never-ending journey into the unknown, where true power associated with purity and creation is found. नया आंदोलन अकेलापन, एकांतपन
प्रभाव और मजबूरी से मुक्त होने की स्थिति का प्रतीक है, जहाँ सभी खोज और उपलब्धि बंद हो गई है। इसे ज्ञात की मृत्यु और अज्ञात में कभी न खत्म होने वाली यात्रा की शुरुआत के रूप में वर्णित किया गया है, जहाँ पवित्रता और सृजन के जुड़ी सच्ची भक्ति पाई जाती है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, प्लीज पुट देम डाउन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू अगेन।